مصر کی سرزمین میں ایک بستی ایسی تھی جس کی گلیوں میں ایک بوڑھے یہودی کا نام بڑے احترام اور عجیب خوف کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ وہ نہ کوئی بادشاہ تھا نہ کوئی قاضی، مگر لوگ اسے ایک انوکھے ہنر کا مالک سمجھتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ صرف کسی لڑکی کی نبض پکڑ کر یہ بتا دیتا ہے کہ وہ اب تک کنواری ہے یا اس کا پردہ عصمت زائل ہو چکا ہے۔ یہ بستی مکمل طور پر یہودیوں سے آباد تھی۔ مسلمانوں کے چند خیمے یہاں موجود تھے، مگر وہ بھی کچھ عرصے بعد ہجرت کر گئے تھے۔ یہودیوں کے اس رسم و رواج میں نکاح سے پہلے لڑکی کو اس بوڑھے کے پاس لے جانا لازمی سمجھا جاتا تھا۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ لڑکی پاک دامن ہے تو اس کا نکاح ہو جاتا، ورنہ اس کی شادی روک دی جاتی اور اسے غلام بنا کر بیچ دیا جاتا۔ بستی کے لوگ اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے، کیونکہ کئی مرتبہ اس کی بات حقیقت ثابت ہو چکی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے فیصلوں کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اس بوڑھے کی شہرت پورے مصر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ اگر کسی بستی میں نکاح طے پاتا تو سب سے پہلا مطالبہ یہی ہوتا کہ دلہن کو اس یہودی کے پاس لے جایا جائے۔ وہ نبض پکڑتا اور اپنے الفاظ میں لڑکی کے مقدر کا فیصلہ سناتا۔ اگر کنواری قرار دیتا تو خوشیاں منائی جاتی، اور اگر بد کردار قرار دیتا تو لڑکی کو غلامی کے بازار میں دھکیل دیا جاتا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عظیم و شان دربار میں، جو اس روز کھلی کچہری کے لیے عام عوام کے لیے کھلا تھا، انصاف کے طلبگاروں کی فریادیں سن رہے تھے۔ دربار میں مختلف علاقوں سے آئے لوگ اپنی شکایات اور مقدمات پیش کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک نحیف و کمزور بوڑھا، جس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا اور جس کے قدم بڑھاپے کی کمزوری سے کانپ رہے تھے، سلطان کے سامنے آ کر رکا۔ اس کے چہرے اور لباس سے ہی ظاہر تھا کہ وہ یہودی ہے۔ سلطان نے اسے غور سے دیکھا اور نرم لہجے میں فرمایا، اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تم مسلمان نہیں بلکہ یہودی ہو، حضرت موسیٰ کے پیروکار ہو۔ بوڑھے نے سر جھکا کر عرض کیا، جی حضور، آپ نے درست پہچانا۔ پھر آہستہ سے بولا، جب آپ نے یہ علاقہ فتح کرنے کے بعد بھی ہمیں اس سرزمین پر اپنی مرضی کے مطابق رہنے کی اجازت دی تو ہمارے دل میں آپ کے لیے جو نفرت تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہم آپ کو ظالم سمجھتے تھے، مگر آپ تو رحم دل اور انصاف پسند ہیں۔ ہمارے تمام یہودی آپ کی عزت کرتے ہیں، چاہے ہمارا اور آپ کا مذہب مختلف ہے۔ یہ سن کر سلطان نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اچھا بتاؤ، کس حاجت نے تمہیں اتنے فاصلے سے یہاں تک پہنچایا؟ بوڑھے نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حضور، ہم ایک بڑی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ بستی کے لوگ بے بس ہیں اور ان کے لیے انصاف کا واحد سہارا آپ ہیں۔ سلطان نے فوراً دریافت کیا، کیا معاملہ ہے؟ تو بوڑھے نے تفصیل سے بتایا، ہمارے علاقے میں ایک بوڑھا یہودی ہے جو لڑکیوں کی نبض دیکھ کر فیصلہ سناتا ہے کہ وہ کنواری ہے یا نہیں۔ اگر وہ پاک دامن کہہ دے تو ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور اگر بد کردار کہہ دے تو لڑکی کو غلام بنا کر بیچ دیا جاتا ہے۔ لوگ اس پر اندھا یقین کرتے ہیں کیونکہ کئی بار اس کی بات درست نکلی ہے، مگر حضور، مجھے شک ہے کہ اس کے پیچھے کوئی چال، کوئی خفیہ حقیقت ہے جو کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اس کی آواز اور بھاری ہو گئی، حضور، میری ایک ہی بیٹی ہے جسے میں نے بڑی محبت اور ناز و نعام سے پالا ہے۔ اب جب اس کی شادی کا وقت آیا تو اس کے مگیتر نے شرط رکھی کہ پہلے اسے اس بوڑھے کے پاس لے جایا جائے۔ اگر وہ اس سے پاک دامن قرار دے تو نکاح ہوگا، ورنہ اس کا انجام بھی باقی لڑکیوں جیسا ہوگا۔ بوڑھے نے کپ کپاتی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی پاک دامن اور معصوم ہے۔ اس نے کبھی گھر کی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا، مگر مجھے ڈر ہے کہ وہ یہودی ضرور اسے بد کردار قرار دے گا۔ سلطان نے سنجیدگی سے پوچھا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ تو بوڑھے نے جواب دیا، حضور، آج تک جتنی لڑکیوں کو اس نے پاک دامن قرار دیا وہ بڑے عہدے داروں، جاگیرداروں یا صاحب حیثیت خاندانوں کی بیٹیاں تھیں، اور جنہیں بد کردار کہا وہ یا تو غریب گھرانوں سے تھیں یا بالکل لاچار۔ میں ایک بوڑھا لوہار ہوں، اپنی بستی میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، اور اگر اس نے ایک بار کہہ دیا کہ اس کا کردار درست نہیں تو بستی کے لوگ مجھے مجبور کریں گے کہ میں اسے غلام بنا کر بیچ دوں۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غصے اور حیرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے بلند آواز میں فرمایا، یہ کیسا قانون ہے اور کیسی جہالت! ابھی حکم دیتا ہوں کہ اس بوڑھے یہودی کو گرفتار کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ بوڑھے لوہار ہچکچاتے ہوئے بولا، حضور، چھوٹا منہ بڑی بات۔ بوڑھے لوہار کی بات ختم ہوئی تو اس نے جھجکتے ہوئے عرض کیا، حضور، اس بوڑھے یہودی پر
पर बस्ती के लोग बेपनाह भरोसा करते हैं। उनके नजदीक वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक इबादत गुजार बुजुर्ग है, क्योंकि वो दिन रात का बेशतर वक्त इबादत में गुजारता है। लोग उसकी ज़हदो तकवा की मिसालें देते हैं और उसके दरवाजे पर अकीदतमंदों का हजूम लगा रहता है। अगर आपने उसे यूं ही गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया तो बस्ती के लोग, जो पहले ही आपकी राया में गैर मुस्लिम हैं, आपसे बदजन हो जाएंगे, बल्कि मुमकिन है कि आपके खिलाफ नफरत उनके दिलों में बैठ जाएगी। लेकिन अगर आप उसका असल चेहरा खुद उन सब के सामने बेनकाब कर दें तो मुझे जरा सा भी शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि पूरी बस्ती के यहूदी इस्लाम कबूल कर लेंगे। लोग पहले ही आपके इंसाफ पसंदी और रहम दिली से मुतासर हैं, और अगर वो अपनी आंखों से देख लें कि ये शख्स दरअसल कैसा धोखेबाज है तो वो जरूर हक को मान लेंगे। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने गहरी नजर से बूढ़े लोहार को देखा और लम्हा भर के लिए खामोश हो गए। फिर आस्था से बोले, तुम ठीक कहते हो, अगर हम उसकी हकीकत को सबके सामने ले आए तो ये महज एक फर्द की सजा का मामला नहीं रहेगा बल्कि एक पूरी बस्ती की हदायत का सबब बन सकता है। मगर सुल्तान के चेहरे पर संजीदगी के आसार थे। वो जानते थे कि ऐसा करने के लिए कोई आम तदबीर काफी नहीं होगी, लेकिन उसका असल चेहरा सबके सामने लाने के लिए हमें एक गैर मामूली मंसूबा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने दफा में हर चाल चल सकता है। ये कहकर सुल्तान गहरी सोच में डूब गए। चंद लम्हों बाद उन्होंने दरबार में मौजूद अपने माहर वजीर को बुलाया। वजीर हाजिर हुआ तो सुल्तान ने धीमी आवाज में कहा, किसी ऐसे माहर को तलाश करके लाओ जो मेरे बाजू को इस तरह तैयार कर दे कि वो बिल्कुल औरत का मालूम हो। ये सुनकर दरबार में मौजूद लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। सबके चेहरों पर सवाल था कि सुल्तान इतना अजीब हुक्म क्यों दे रहे हैं। सुल्तान ने उनकी तरफ देखकर वजाहत की, मैं जानता हूँ कि औरत की मुशाहबत इख्तियार करना सख्त गुनाह है और ये अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक एक नापसंदीदा और बुरा फेल है। लेकिन इस मौका पर अगर ये चाल न चली गई तो उस यहूदी का असल चेहरा कभी भी लोगों पर अया नहीं होगा और न ही हम उस फरेब को तोड़ सकेंगे जो बरसों से बस्ती के लोगों के जहनों में बैठा दिया गया है। सुल्तान के ये अल्फाज सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। सब ने सर झुका दिए, क्योंकि वो जानते थे कि सुल्तान जो भी कदम उठाएंगे वो सिर्फ अदल और इंसाफ की खातर होगा, न कि किसी जाती गर्ज के लिए। इतने में वजीर ने हुक्म बजा लाते हुए एक माहर शख्स को दरबार में हाजिर कर दिया। वो शख्स अपने फन में यकता था। उसने आगे बढ़कर बड़े अदब से सुल्तान के सामने सलाम अर्ज किया और फिर हुक्म की तमील में मसरूफ हो गया। उसने सुल्तान के बाजू पर मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से तैयार करदा मरहम और नरम चूने जैसा महलूल लगाया। कुछ देर बाद उसने बाजू पर बारीक रेशमी कपड़ा लपेट कर मसाज किया, फिर खास पाउडर और तेल का इस्तेमाल किया। आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान का मजबूत और मर्दाना बाजू इतना नरम और नाजुक हो गया कि वो देखने में किसी नौजवान औरत के बाजू जैसा मालूम होने लगा, साफ गोरा और बिल्कुल मुलायम। हाजरीन ने हैरत से ये तब्दीली देखी मगर कोई कुछ न बोला। उसके बाद सुल्तान ने एक औरतों जैसा हल्का रेशमी निकाब लिया, उसे उस तरह लपेटा कि सिर्फ आंखें झलक रही थीं। निकाब के साथ उन्होंने एक लंबा चोगा ओढ़ा जिससे उनकी कमत और हुलिया बिल्कुल किसी बापर्दा औरत जैसा दिखाई देने लगा। ये सब तैयारियां मुकम्मल हुई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तलवार को लिबास के अंदर छुपाया और वजीर को इशारा किया। फिर वो बूढ़े लोहार के हमरा उस बस्ती की तरफ रवाना हो गए जहाँ वो मशहूर यहूदी बूढ़ा अपने फरेब का कारोबार कर रहा था। रास्ते में सूरज की रोशनी मध्यम पड़ रही थी और बस्ती की बुलंद फसलें नजर आने लगी थीं। सुल्तान के दिल में सिर्फ एक ही अज़म था, आज इस बस्ती के लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि उनका बुजुर्ग और इबादत गुजार दरअसल कैसा धोखेबाज और जालिम है। चंद घंटों के सफर के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस बस्ती में दाखिल हुए तो मंजर इंतहाई दर्दनाक था। गलियों और बाजारों में एक अजीब उदासी फैली हुई थी। लोग खामोश और गमगीन चेहरों के साथ गुजर रहे थे। ये वो बस्ती थी जहाँ इस जालिम यहूदी बूढ़े की वजह से कई घरों के चिराग बुझ चुके थे, कई बाप अपनी बेटियों को गुलामी में खो चुके थे और कई माओ के आंचल हमेशा के लिए खाली हो गए थे। सुल्तान ने अपने साथ आए हुए बूढ़े लोहार से कहा, तुम यहाँ रुको, अपनी बस्ती के सब लोगों को एक जगह जमा करो और उन्हें ये खबर दो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद इस बूढ़े यहूदी के पास आए हैं। सब लोग वहाँ इकट्ठे हों ताकि उनकी आंखों के सामने मैं उसका असली चेहरा बेनकाब कर सकूं। मगर याद रखना, ये सब
सब खामोशी से होना चाहिए, उससे यहूदी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। बूढ़े ने आजिजी से जवाब दिया, हुजूर जैसा आपका हुक्म। उसके बाद सुल्तान दोबारा औरत का हुलिया इख्तियार किया, नरमो नाजुक बाजू और चेहरे को नकाब से छुपाया, लंबा अबाया पहना और इस जालिम के खेमे की तरफ बढ़ने लगे। खेमे के बाहर कुछ लड़कियां अपनी नब्ज दिखाकर वापस जा रही थीं। कुछ के चेहरों पर खुशी थी क्योंकि उन्हें पाक दामन करार दिया गया था, मगर कई लड़कियां आंसू बहा रही थीं क्योंकि इस फरेबकार ने उनकी इज्जत का फैसला एक झूठ की बुनियाद पर कर दिया था। सुल्तान खेमे के अंदर दाखिल हुए। उनके साथ बूढ़ा लोहार था जो अपने आप को लड़की का बाप जाहिर कर रहा था। यहूदी बूढ़ा हस्बे आदत एक बसीदा चटाई पर बैठा था। उसके सामने एक छोटा सा मेज जिस पर तस्बीह और चंद जड़ी बूटियां रखी थीं। जैसे सुल्तान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने नब्ज पकड़ने के लिए हाथ थामा, मगर चंद लम्हों में उसका रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए और आंखों में खौफ तैरने लगा। बूढ़े लोहार ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, हुजूर आपका रंग क्यों जर्द पड़ रहा है? यहूदी ने हिचकिचाते हुए कहा, ये किसी लड़की का हाथ नहीं और ना ही ये किसी आम आदमी का हाथ है। उसी लम्हे सुल्तान ने धीरे से नकाब हटाया और पूरी रौनक के साथ कहा, अगर तुम इतनी महारत रखते हो कि हाथ पकड़ते ही जान गए ये लड़की नहीं, तो बताओ तुम्हें कैसे पता चलता था कि कौन सी लड़की पाक दामन है और कौन बदकार? तुम बगैर जिस्म देखे और बगैर कोई सबूत लिए कैसे फैसला कर सकते थे? यहूदी बूढ़ा लरजते हुए बोला, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, उसके पीछे कोई हकीकत नहीं थी। मैं तो सिर्फ मालो दौलत इकट्ठा कर रहा था और अपनी हवस पूरी करने के लिए ये सब करता था। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि ये इलाका छोड़कर चला जाऊंगा। सुल्तान ने गजबनाक लहजे में कहा, जो जुल्म तुमने किया उसकी कोई माफी नहीं। इस दौरान खेमे के बाहर खड़े लोग बूढ़े लोहार ने खामोशी से बुलाया था। सब अंदर जमा हो गए। वो सब यहूदी अपने इस बुजुर्ग की इकरार करदा बातें सुन चुके थे और अब हैरत हो गुस्से से उसे देख रहे थे। सुल्तान बुलंद आवाज में कहा, तुम्हारा अंजाम ऐसा होगा कि इस इलाके के यहूदी हमेशा याद रखेंगे। और फिर एक ही वार में उसका सर खेमे के बाहर कलम कर दिया। खून की बू और लोगों की हैरत ज़्यादा चीखें फजा में गूंजने लगी, मगर फिर इस सन्नाटे को बस्ती वालों के नारे तोड़ने लगे। वो यक ज़बान होकर कहने लगे, आपका दीन ही सच्चा है। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं। उस दिन सुल्तान की हिकमत, बहादुरी और इंसाफ की बदौलत पूरी बस्ती इस्लाम ले आई और इस जालिम का फरेब हमेशा के लिए खत्म हो गया। नाज़रीन करम, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।